आपको ये तीनों डेटा मालूम होना चाहिए. यू कैन यूज इट इन योर इंट्रो, यू कैन यूज इट इन योर कंक्लूजन, आप बॉडी में यूज कर सकते हो. और अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया जो बिल्कुल फ्यूचर सिनेरियो की बात कर रहा है तो आप वो डेटा यूज कर सकते हो. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत चिपकाइए. नोबडी इज गोइंग टू टेस्ट हाउ गुड यू आर इन राइटिंग गुड इंग्लिश, बट कीप इन माइंड कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कीवर्ड्स, उनको आपको थोड़ा याद करिए. सो ऑलवेज प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर द टॉपिक्स which are being repeated in your mains. पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? पहले क्वेश्चन में आपसे स्कोप पूछा और सिग्निफिकेंस पूछा. यहाँ पे आपसे चैलेंजेस पूछ लिया और अपॉर्चुनिटीज पूछ ली. Whatever has been mentioned in your syllabus, you should have a 360-degree view of that topic, data, and especially with sunrise sectors, past, present and future. You should have a knowledge of that. It's just ki you can flow using flow charts and spoke and wheel diagrams and using these kinds of diagrams. Thoda it puts a certain aesthetic value to your answer. Hello everyone. So welcome back. And आज हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे on the PYQs in GS3 on the topic of food processing and लैंड रिफॉर्म्स. ओके, सो लास्ट टाइम हमने एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे डिस्कस किया था, हमने PYQs देखे थे. वी ट्राइड टू फिगर आउट, वी लर्नड हाउ टू अटेम्प्ट सर्टन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट वेरियस फ्रेमवर्क्स that could be applied in questions, or how you go about understanding the demands of the question and kind of understanding as to किस चीज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. क्या वो होलिस्टिकली आपसे कुछ चैलेंजेस पूछ रहा है या किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपसे चैलेंज पूछ रहा है, किसी के इम्पैक्ट्स अगर वो पूछ रहे हैं तो किस सेक्टर में पूछ रहे हैं, एंड अगर वो कुछ स्पेसिफिक है तो हाउ डू यू गो अबाउट आंसरिंग सच क्वेश्चंस एंड हाउ डू यू create a framework of those answers. Now, today we will be doing the topic of food processing and land reforms. And let me tell you that food processing is a topic जो काफ़ी बार civil services mains में repeat होता है ना? So one thing about you should know things about food processing जैसी जो industry है. These are usually sunrise sectors. Usually क्या? They are sunrise sectors. Okay, so sunrise sectors के बारे में एक चीज़ अच्छे से समझिए. क्योंकि वो एक sunrise sector है, इसका मतलब उसका past, present and future, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. And by that I mean that you should know the data pointers and facts about what this sector was in the past in terms of India, of course. And how are we as a country performing in this sector right now? And thirdly, how and in what ways we can ensure that we keep doing well in this industry in the future, wherein you can also talk about the scope of this industry. Things like कि कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू जनरेट करने का, या कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, थिंग्स लाइक दैट. तो सनराइज सेक्टर के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मालूम होना चाहिए विथ डेटा बैकअप्स फ्रॉम ऑथेंटिक websites and authentic material. Okay, so food processing is one such sunrise sector. इसके अलावा renewable sector आप ले लीजिए, है ना, EV sector आप ले लीजिए. These are all sunrise sectors. इनका पहले भी बात हुई थी, अब और ज़्यादा बात हो रही है, एंड क्लाइमेट चेंज के वजह से फ्यूचर में इनका स्कोप और ज़्यादा है. So these are the sunrise sectors. और भी हैं, please make a note of sunrise sectors and ensure that you have a 360-degree view about it. Having a 360-degree view about a topic means, again, you know the data pointers of all the 3 stages, and also आपको इनके challenges, आपको इनका scope, आपको इनका impact, इनमें वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. आप 1-pager नोट्स जब इन सारे टॉपिक्स के बनाते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो. कीप अ 360-degree व्यू ऑफ थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे, wherein we firstly discuss the question of 2022, which you can see that is on the food processing industry, and it's a very simple and very direct question. एकदम directly आपसे पूछा है
कोई घुमाने की कोशिश नहीं की है, या सेक्टर स्पेसिफिक नहीं किया है, या कोई स्टेक होल्डर स्पेसिफिक नहीं किया है. दे हैव जस्ट आस्क्ड यू elaborate the scope and significance of the food processing industry in India. Okay, so now आपको स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स आपको डेटा से स्टार्ट करना है. GS3 है मतलब डेटा होगा. तो आप यहाँ देखिए, हम वी हैव मेंशन्ड अ डेटा वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द contribution of the food processing industry to the gross value addition that it does in the manufacturing, and how much percent of employment in the manufacturing sector it has. Okay, and this is the annual report of Ministry of Food Processing. तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए. मिनिस्ट्री का डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सारे केस में. ओके, हाउ वट एवर डेटा द मिनिस्ट्री इज प्रेजेंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली ऐसा. ओके, नाउ वन मोर थिंग विच आई विल लाइक टू ऐड हियर. कोई भी ऐसा टॉपिक आपके GS3 में हो, या GS1 में हो, या GS2 में, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको मालूम है कि इस सिलेबस में जो नाम दिया है उसकी डायरेक्टली एक मिनिस्ट्री है. जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, बट तो आप उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा को रेफर करते हो, है ना. बट यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अपनी एक मिनिस्ट्री भी है ना. सो कीप इन माइंड दैट you have to kind of remember the data. इनके पीछे जो भी डेटा दे गिव, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो now and what it is expected to reach a market size of 700 billion by 2030, growing at a CAGR of 11 to 12%. तो ये क्या हुआ? This is a 360-degree view of your फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. आपने बताया कि अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने ये बताया कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री. ठीक है, ओके. सो नाउ यू कैन ऑल्सो सी, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वी हैव काइंड ऑफ पुट अप अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ओवरव्यू, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना इंक्रीज हुआ है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज हुई है, एंड एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज हुई है. देन देयर इज दिस ग्राफ वेयर यू कैन सी कि विकसित भारत 2047 की रिपोर्ट है. दिस इज द सोर्स, एंड दिस इज द प्रोजेक्टेड मार्केट साइज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस तरह के जब डेटा प्रोजेक्शंस आपके अवेलेबल हैं, आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए. गो टू द वेबसाइट्स ऑफ विकसित भारत 2047 रिपोर्ट. यहाँ आपको सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही नहीं, यहाँ आपको दूसरी चीज़ों की भी रिपोर्ट मिल जाएगी, दूसरी चीज़ों का भी ग्राफ मिल जाएगा. यू विल फाइंड अदर थिंग्स विच यू विल फील कि इनको हम अपने आंसर्स में सप्लीमेंट कर सकते हैं या हम पुटअप कर सकते हैं. ओके, नाउ so again addressing the first part of the question which talks about the scope of the food processing industry in India. So what could be the scope? आप अगर ऐसे भी सोचिए तो what could be the scope of food processing industry? First of all, that it has a vast raw material base, है ना. It has a untapped potential because low processing levels है. तो इसमें किसी चीज में अगर पोटेंशियल है एंड राइट नाउ वी आर नॉट टैपिंग इट, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी एज टू हाउ वी कैन इंश्योर दैट द पोटेंशियल इज बीइंग मेट. एंड देन देयर इज एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक मार्केट डिमांड. रिटेल एंड ई कॉमर्स की ग्रोथ तो है ही, स्विगी, इंस्टामार्ट, आप ये सारी चीज़ें आज के डेट में इनका यूजेज बढ़ गया है, इनका कस्टमर बेस बढ़ गया है, और जैसे जैसे इन चीज़ों की यूज़ बढ़ेगी, यू ऑफ कोर्स नो दैट कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इनके साथ कोलैब करके अपना मार्केट वैल्यू दे कैन इंक्रीज. Then there are export market की opportunities है, government incentives and infrastructure push है, innovation and agro based startups है. You can name the startups, you can mention the data behind all this scope. Now again, as last time जैसे मैंने आपको बोला था कि again
it will be a little difficult for you to remember data for each and everything. But out of these 7 points, again, if you can mention 5 or 6 of these points, and उसके साथ अगर 3-4 point में भी आप data डाल पा रहे हो ना, that is also sufficient. Okay, you just have to show the examiner कि आपने जो point रखा है आप उसको justify कर पा रहे हो, है ना. You can tell them by the data itself कि sir ma'am, जो भी मैंने topic आपको बता रही हूँ, जो भी मैं आपको scope बता रही हूँ, उसकी मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ और मैं आपको एक डेटा के साथ बैक करके बता रही हूँ कि सी दिस इज द स्कोप, व्हाई, बिकॉज दिस इज द डेटा. ओके, and then you go to the second part of the question which talks about the significance. Now significance again can take a lot of forms. Here it is, आपसे एक होलिस्टिक व्यू पूछा है, एक पूरा ओवरऑल व्यू देने बोला जा रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपको फील होती है या आपने जो अपने स्टैटिक पोर्शन में से पढ़ा है, जो आपको लगता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपका फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस है. सो फार्मर्स इनकम डबल हो रही है, ऑफकोर्स क्यों, कैसे हो रहा है ये भी मेंशन करिए. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा अपने पॉइंट को 1-2 लाइन से ऑफकोर्स एक्सप्लेन. Do not just write points and move ahead. This is a subjective paper. So each and every point that you mention, you should always explain it in a 1 or 2 line sentence. तो अगर आप सिर्फ doubling farmers income लिखिएगा, which is fine, but explain ना थोड़ा सा 1-2 लाइन में कि कैसे फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी. वैल्यू एडिशन होगा, बेटर मार्केट प्राइस मिलेगा उनको, मार्केट लिंकेज होगा, है ना. एंड this has also been recommended by the दलवई कमेटी. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि कमिटी के रिपोर्ट्स थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा समरी में आपको पता होना चाहिए. नाउ एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं या फूड प्रोसेसिंग इज उसका एक आगे का पार्ट है, तो उसमें भी अगर किसी कमिटी के रिकमेंडेशन है तो नोट इट. नाउ सी, फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, सी व्हाट हैपेंस इज GS3 में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जो जिनका इनडायरेक्ट लिंकेज होगा सिलेबस से, एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड ऑल्सो बी समथिंग जो थोड़ा टफ हो. अब उसमें गेस करना कि क्या डेटा डाल सकते थे या क्या कमिटी याद कर सकते थे, वो फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है. नहीं, अंडरस्टैंड दैट. बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, यू कैन नॉट मिस दैट. अंडरस्टैंड कि आपको जब अगर वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है और आप अपने PYQ से ये नोटिस कर रहे हो कि ईयर आफ्टर ईयर, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, या है ना, इस पे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको अगेन यू शुड हैव अ 360 degree view of that topic. Okay, so coming to the next significance, that is it could reduce post harvest losses. How it can do that, है ना. एंड सम डेटा इफ यू रिमेंबर, उस टाइम पे अगर आपके पास कुछ डेटा हो कि एनुअल लॉस कितना है उस चीज़ से, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितना होता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, वाई, बिकॉज इट इज़ लेबर इंटेंसिव, MSME डोमिनेटेड, कितना को इफेक्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बूस्ट कर सकती है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकती है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगी, एलाइड सेक्टर्स उसके साथ जो कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक्स है, पैकेजिंग है ना, एक का फायदा हो रहा है तो बाकी दूसरों को भी फायदा होगा. मेंशन ऑल दीज थिंग्स. रिमेंबर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि दीज आर द थिंग्स यू कैन मेमोराइज एंड जस्टिफाई इन योर आंसर, write it in your answer. Okay, so and then you can conclude your answer by giving a summary of the above answer that you wrote, that how it is a key driver of rural transformation and agricultural value addition, and how it has the potential to make Indian agriculture more remunerative, resilient and globally competitive. These are some of the keywords जो आपको ना थोड़ा हैबिट में लाना होगा. मतलब ठीक है, इट्स गुड राइट, आप अपने आंसर्स को सिंपल ही लिखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत चिपकाइए. नोबडी इज गोइंग टू टेस्ट हाउ गुड यू आर इन राइटिंग गुड इंग्लिश, बट कीप इन माइंड कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कीवर्ड्स, उनको आपको थोड़ा याद करिए. रिमेंबरिंग वर्ड्स लाइक रेम्यूनरेटिव, रिजिलियंट, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ये सारे वर्ड्स आप लिखिएगा ना, इट अच्छा लगता है आंसर में देख के. इट काइंड ऑफ गिव्स सामने वाले को एक वो व्यू देता है कि अच्छा ओके, you kind of understand you have the maturity of writing answers in a way which reflects कि okay, you are aspiring to be a future bureaucrat. Now
अब तो ये हो गया कि दिस वॉज वॉट, अगर आपसे होलिस्टिकली कुछ पूछा जा रहा है तो, है ना. नाउ आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग आंसर्स व्हेनेवर आपसे स्कोप पूछा जाए, एंड दिस इज ट्रू फॉर नॉट ओनली फूड प्रोसेसिंग, दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर सेक्टर. ओके, सो द थिंग इज कि आपसे अगर किसी भी सेक्टर का स्कोप पूछा जाए, अब अगर आपसे उनका स्कोप पूछ रहे हैं, फूड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, कोई और इंडस्ट्री हो सकती है, तो यू हैव टू ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन इन एस्पायर फ्रेमवर्क. सो एस्पायर फ्रेमवर्क में आप इसको आंसर करने का कोशिश करिए, वेयर ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उस सेक्टर का या जिसके भी स्कोप की आप बात कर रहे हो उसमें रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, रॉ मटेरियल्स का क्या कितना प्रेजेंस है, नेचुरल एंडाउमेंट्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल को कितना कवर कर रहा है ना, सोशो इकोनॉमिक डिमांड क्या है, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है कि नहीं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में, रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना कर सकती है ये, और एग्जिस्टिंग गैप्स एंड अनटैप्ड एरियाज, है ना. और ये आपका एस्पायर फ्रेमवर्क विल, मतलब आपका ये किसी भी ऐसे जगह पे लग जाएगा, किसी भी ऐसे इंडस्ट्री में, या कोई भी ऐसा आप कुछ भी है ना, यू नो, जस्ट राइट नाउ आई कांट प्लेस, कुछ मुझे अभी एकदम से चमक नहीं रहा है, बट यू नो इट कुड बी अबाउट एनी इंडस्ट्री, एनी सेक्टर, एनी पोटेंशियल स्कीम्स ऑल्सो कहीं कहीं पे, यू नो, जिसमें आपका ये एस्पायर डायमेंशन लग सकता है. सो वेरी होलिस्टिक, वेरी यू नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क. नाउ moving on to the significance part, if the significance part is being asked in your answer, okay, about, suppose right now if you are talking about the food processing industries, then use the CRISPR's framework. Okay, now what is that? You will always talk about the CRISPR's framework in this way, wherein you first talk about the contribution to economy that the industry is giving, then the rural and regional impact, inclusive growth, sustainability, productivity and efficiency, employment generation, resilience building, strategic and global relevance. ठीक है. So now you see, तो इसके आप डायमेंशंस खोलो, है ना, एंड क्या क्या सोच सकते हो आप इससे रिलेटेड, उन चीजों पे ध्यान दो. सी, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेल यू कि एक फ्रेमवर्क को हमेशा दिमाग में रखिए, और इस फ्रेमवर्क को आप कहीं भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं इन स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप उस एग्जाम का प्रेशर उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता है, और वो एक पेपर ख़त्म करने की जल्दी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी आपको पॉइंट्स दिमाग में नहीं आते हैं. बट इफ़ यू रिमेंबर द फ्रेमवर्क, इफ़ यू काइंड ऑफ नो कि अच्छा, इफ़ यू कैन कनेक्ट अपने मेमोरी से कि यहाँ पे यू नो इट्स अ सिग्निफिकेंस रिलेटेड क्वेश्चन, सो आई कैन अप्लाई द क्रिस्पर्स मेथड, तो आप फटाफट यू नो यू कैन मेंशन पॉइंट्स. एंड देन अगेन, of course, when you have read so much content, you can always open कि आप इस contribution to economy में आप कैसे इस चीज़ को explain करोगे कि कैसे food processing industry का contribution है या किसी और industry का contribution है. आप GDP का बात कर सकते हो, industrial growth का, थोड़ा ना use your common sense and logic कि कैसे कोई contribution कर सकता है economy में, क्या parameters होते हैं जिसके वजह से हम कहते हैं कि ये sector economic में contribute कर रहा है ना. अगर आप employment generation की बात करते हो किसी भी सिग्निफिकेंस रिलेटेड चीज पे, तो आप ये सोचते हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे फायदा होता है, फॉर्मल जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट कर रहा है, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कितना उनका सिग्निफिकेंस है. तो डायमेंशन के अंदर भी और डायमेंशन सोचिए, है ना. एक तो पहला स्टेप है कि आप ये समझिए कि आपको कितने डायमेंशंस खोलने हैं उस आंसर के. उसके बाद हर एक डायमेंशन के अंदर आप वेरियस तरह से सोच सकते हो, है ना. किसी किसी टॉपिक में आप बहुत तरीके से सोच सकते हो. ट्राई टू पुट अप दोज पॉइंट्स, 1 or 2 points फॉर एवरी डायमेंशन दैट यू आर मेंशनिंग. इफ मतलब एक तो आपको करना ही है, 2 कर दीजिएगा तो और अच्छा है. यू नो यू कैन एक्सपैंड योर आंसर, यू कैन टेल द एग्जामिनर दैट आपको इतनी सारी चीजें मालूम है इस चीज के बारे में. ओके, नाउ अगला अप्रोच है इज द स्टेक होल्डर अप्रोच. अगर आपसे
किसी इंडस्ट्री रिलेटेड या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही अगर आपसे स्टेक होल्डर अप्रोच पे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कि देयर आर सपोज अ क्वेश्चन लाइक दिस कि देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स involved in the food processing industry, how significant it is for them, उनके लिए क्या significance है, तो you should know. पहले तो of course आपको हमेशा हर चीज के पीछे अगर कहीं भी आप स्टेक होल्डर्स कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. सिटीजन्स होंगी, गवर्नमेंट्स होंगी, है ना, देन आपके एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, इन फ्यूचर जनरेशन को कैसे फायदा हो रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर द फ्यू स्टेक होल्डर्स. कुछ स्टेक होल्डर्स आपके होंगे जो परपेचुअली हर जगह फिट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया. एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स में फार्मर्स हमेशा आपके लग जाएंगे, गवर्नमेंट का हमेशा रोल होगा, कंज्यूमर या सिटीजन्स का हमेशा रोल होगा. इसके अलावा फिर थोड़ा सा और बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक होने लगते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का रोल कहाँ कहाँ हो सकता है, इन्वायरमेंट या फ्यूचर जनरेशन में कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है. तो some stakeholders will always remain static for irrespective of what that topic is, और कुछ नए additions होंगे which I am sure आप उस समय बिल्कुल सोचने के capacity में होंगे, because आप you would have read so much by the time you go and give your mains. तो stakeholder approach में talk about firstly about the stakeholders of course and the significance of the sector from their perspective. उनके perspective से उनको कैसे फायदा होगा ये आपको mention करना है. ठीक है. Then it could be industry and corporates also, global partners, trade networks, anything. It could be multiple stakeholders. Try to open the dimension as much as you can, है ना, and again the significance they will have. So this is how you go about attempting a question on food processing industry with various answer writing framework. If it is a stakeholder approach, if it is something जो कि significance की बात कर रहा है, या अगर वो scope की बात कर रहा है. Okay. Now moving ahead to next question. Again a food processing industry का question है. What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can the income of farmers be substantially increased by encouraging food processing industry? अब आप देख रहे हो 2022 में पूछा है, फिर 2020 में भी पूछ दिया है. Now why I am telling you, now you see, now you'll understand why I am telling you कि एक टॉपिक जो आपका सिलेबस में मेंशन्ड है उसका एक 360 डिग्री व्यू होना आपके लिए क्यों जरूरी है. क्योंकि आप देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में आपसे स्कोप पूछा और सिग्निफिकेंस पूछा, यहाँ पे आपसे चैलेंजेस पूछ लिया और अपॉर्चुनिटीज पूछ ली, है ना. तो अब मान लीजिए आपके पास इसका 1 पेजर नोट्स आपके पास है, आपको मालूम है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. मैं आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन उसी वक्त. यू कैन इजिली you will have memorized those content and then it will become easy for you to kind of remember it. So answering this question, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ठीक है भाई ये सनराइज सेक्टर है, इमेंस पोटेंशियल है, और बता दिया कि इमेंस पोटेंशियल क्या क्या है इस सेक्टर में, है ना. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात की, मार्केट साइज के बारे में मेंशन कर दिया, जीवीए एडिशन के बारे में हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बात किया था, और ये वाला जो हमने ऊपर के आंसर में भी देखा है. तो द इंट्रोडक्शन कुड बी मोर और लेस इन दोनों का सेम वर्क कर जाएगा. अब आप देख रहे हो आपकी मेहनत यहाँ कितनी बच जा रही है. अगर आपने अपने नोट्स में एक इंट्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके ऑलरेडी बना दिया है, जहाँ पे आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का डेटा मेंशन किया हुआ है ना. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन में सारे डेटा आप घुसा दो, पास्ट के भी घुसा दो, प्रेजेंट के भी घुसा दो, फ्यूचर के भी घुसा दो, बट आपको ये तीनों डेटा मालूम होना चाहिए. यू कैन यूज इट इन योर इंट्रो, यू कैन यूज इट इन योर कंक्लूजन, आप बॉडी में यूज कर सकते हो. और अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया जो बिल्कुल फ्यूचर सिनेरियो की बात कर रहा है तो आप वो डेटा यूज कर सकते हो. बट अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, एक 360 डिग्री व्यू रखिए आप. ओके, सो अब आपके पास इंट्रोडक्शन पहले से प्रिपेयर्ड होगा, आपको मालूम है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहे हैं हर 2-3 साल में, तो आ ही जा रहा है, तो यार इसकी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखो. यू माइट नॉट काइंड ऑफ रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट बिकम्स कि आपको कुछ चीज पहले से याद है, आपका टाइम बचता है. There will be questions where you will have to take a step back in your exam, और आपको 3-4 सेकेंड देना पड़ेगा सोचने के लिए कि आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, है ना.
बट इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपके पास एक इंट्रो पहले से दिमाग में प्रिपेयर्ड है, आपको दिमाग नहीं लगाना है. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड दैट 30 for द few seconds that you saved, you can use it in another question which will require your brainstorming at that point in the exam. So always prepare an introduction and conclusion for the topics which are being repeated in your mains exam and it is directly mentioned in your syllabus. Okay, now so first we will divide it into parts and we will talk about what are the challenges and what are the opportunities. So we will first talk about what are the opportunities that we'll first talk about the challenges that this industry has and here we will use the staple फ्रेमवर्क, है ना. हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि चैलेंजेस को हम एक स्टेपल फ्रेमवर्क के थ्रू अरेंज कर सकते हैं. तो स्टेपल फ्रेमवर्क में आप कैसे सप्लाई चेन एंड स्टोरेज का बात करो, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एक बार आप सोच कर देखोगे. सप्लाई चेन और स्टोरेज की दिक्कत हो सकती है, क्या चैलेंज है उसमें, एंड एक डेटा उससे रिलेटेड, सप्लाई चेन स्टोरेज से रिलेटेड अगर आपको कोई डेटा याद है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए. अगेन ये नीति आयोग का डेटा है ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको याद रखिए. अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि एनी डेटा जो कि नीति आयोग डाल रही है ना, ट्राई टू काइंड ऑफ मेक अ नोट ऑफ इट. मतलब अगेन डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग इन योर एग्जाम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नीति आयोग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. तो किसी भी फील्ड में अगर उनका कुछ डेटा है तो ट्राई रिमेंबरिंग इट, मेक अ नोट ऑफ इट एंड कीप रिवाइजिंग इट. देन टेक्नोलॉजी, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आ सकता है, फाइनेंस का अगर एक्सेस में प्रॉब्लम है, पॉलिसी रेगुलेशन की कोई दिक्कत है, क्या इसमें दिक्कत है, हाई कंप्लायंस बर्डन है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, रेड टेपिज्म करके आप मेंशन कर सकते हो, लिंकेजेस, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, देन एक्सपोर्ट एंड मार्केट, So you can mention, you can address the challenges through staple framework. आप और भी सोच सकते हो ना, ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ ये मेंशन कर दिया तो आपको सिर्फ यही challenges लिखना है. रीड योर न्यूज़पेपर्स, रीड द एडिटोरियल्स. आपको अगर लगता है कि कोई और ऐसा चैलेंज है जो यहाँ मैं नहीं मेंशन कर पाई हूँ, या आपको एक यूनिक दिखता है कि यार ये तो ऐसा चैलेंज है कि लोग सोच नहीं रहे हैं इस बारे में, बिल्कुल मेंशन करिए. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट कि इसी फ्रेमवर्क में आपको आंसर करना है. ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे आपका सोचने का टाइम थोड़ा बच सके, आपको वहां बैठ के फ्रेमवर्क ना सोचना पड़े, आपके पास इन हैंड एक ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क हो कि हाँ ठीक है, स्टेपल फ्रेमवर्क में जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर देता है. यू कैन ऑलवेज मेक एडिशंस एंड पुट अप पॉइंट्स विच यू फील आर यूनिक एंड रेलेवेंट टू द क्वेश्चन. ओके, योर यूनिकनेस विल टेक यू मोर अहेड इन द एग्जाम, क्योंकि जेनरिक आंसर्स हर बच्चा लिख रहा होता है और कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चे जेनरिक आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट वहाँ एकदम सही सही अच्छे से हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ऑफकोर्स द पेपर आपका टफ आता है. एंड देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल बी एड्रेसिंग इट अपॉर्चुनिटीज के जैसा. ना अब एक चीज समझिए कि स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आर मोर और लेस सिनोनिमस, है ना. तो आप इसको एस्पायर फ्रेमवर्क के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था. इट इज लाइक सिमिलर टू द स्कोप. सो एस्पायर फ्रेमवर्क अगर हम यहाँ देखें, है ना, तो वी कैन आंसर इट इन द सेम वे. We can talk about the raw material base, we can talk about the export potential, domestic and global demand, policy support, technological innovation, employment generation and rural entrepreneurship, and the details of each of them. So, ये आपका हो गया. And then now, what did I tell you in the last class? कि अगर आपने challenges mention किया है तो you have to mention way forward. And when you come to that, you could use a PIES framework where you talk about the policy or the political aspect of it. You can talk about the institutional or infrastructure aspect of it, economical or financial aspect, and social and human capital. And you can mention the few way forwards. इसमें से अगर आप चारों मान लो आपको याद नहीं है तो कोई 2 मेंशन कर दो आप, कोई 3 मेंशन कर दो आप, बट वे फॉरवर्ड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप
told them कि कुछ challenges हैं. Now challenges हैं तो आपको solution भी देना पड़ेगा. You'll have to provide them solution, and that is where your way forward comes in. So you know, PMKSY को mention कर लीजिए, और you can talk about promotion of cold storage. You can talk about collateral loans. अगर economic या financial way forward के बात कर रहे हो तो आप loans की बात करिए, है ना. And then you can also talk about how you can integrate farmer produce into midday meal schemes, ICDS, fortified food programs. ये आपका social and human capital के way forward के अंदर आ जाएगा. Dimensions खोलिए, dimensions का भी और dimensions खोलिए, सोचिए थोड़ा सा, you know, brainstorming. That is why I tell you कि PYQs का ना, अब क्योंकि now that I have told you about कि what answers you are supposed to write does not mean कि आप यहाँ से blindly copy करिए. Take this as a reference, है ना. Make brainstorming the first thing that you do in your answers. कोई भी PYQ आप attempt करते हो, कोई भी mock के questions आप attempt करते हो मेंस में, always आपका brainstorming reflex होना चाहिए. ये reflex नहीं होना चाहिए कि जल्दी से model answer खोल के देख लेते हैं. नहीं, आपका खुद का कुछ creative process उसमें develop ही नहीं होगा. Take help of ChatGPT, of course, वो भी आप कर सकते हो. But again, brainstorming should be the first thing that you do. And then you have this framework also. यहाँ से भी रेफरेंस लीजिए, आप बिल्कुल रेफरेंस लीजिए. आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे लिखना है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क. दिस इज यू विल हेल्प यू काफी ज्यादा टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट अटेम्प्टिंग सच आंसर्स. बट फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म. प्लीज ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म एज मच एज पॉसिबल. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये काम आपका अभी के 2 महीने में नहीं हो सकता है, जहाँ आपका मेंस इज लाइक हियर, एकदम बिल्कुल आने वाला है अगले लेस देन 2 months नाउ. तो ये आपको पहले करके रखना है. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला आदत यू हैव टू डू इट इन दीज 2 months ऑल्सो. बट इन 2 महीने में व्हेन यू रीच हियर, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की इतनी आदत हो जानी चाहिए कि दैट शुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, विच यू हैव टू स्टार्ट डूइंग जुलाई जून से ही. जब आप पहली बार मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, या व्हेन यू गो थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस वंस अगेन आफ्टर योर प्रीलिम्स. ओके, एंड देन यू कैन, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप you can talk about the conclusion, where how bridging transport and marketing gaps, they require integrated efforts through schemes like PM Gati Shakti, Kisan Rail, ENAM, and how they could help in the expansion and strengthening of the food processing organizations, and how the seamless agri-logistics and market ecosystem is essential to double farmers' income and reduce wastage. आपने challenges और आपने वे फॉरवर्ड का अच्छा से एक कंपाइलेशन किया, और आपने 3 लाइन में उनको अपनी कंक्लूजन दे दी. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेंशनिंग अ कंक्लूजन इन योर क्वेश्चन, कि आप अपना ऊपर का इंट्रोडक्शन, जो 2 आपका क्वेश्चन का पार्ट है, वो उन सबको मिला के उसमें से एक होलिस्टिक कंक्लूजन बनाते हो. अगेन क्वेश्चन नंबर 2019, यू सी, अभी हमने कौन सा साल का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? दिस वाज अ 2020 का क्वेश्चन, जस्ट 1 साल पहले ही. सो अगर आपने 2019 में दिया है तो आप देखोगे 2020 में सेम चैलेंजेस वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है. Elaborate on the policy taken by government of India to meet the challenges of the food processing sector. Now, एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों क्वेश्चन. जहां आपसे पहले, अभी जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें आपसे डायरेक्टली चैलेंजेस पूछ रहे हैं. यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि चैलेंजेस तो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट आपको ये बताना है कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट हमारी क्या पॉलिसी ले रही है. बट इसको आंसर करने से पहले आपको एक्चुअली चैलेंजेस भी मालूम होना चाहिए. यू शुड नो दोज चैलेंजेस. विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर कि गवर्नमेंट एक्चुअली काम क्या कर रही है. आपको स्कीम्स वगैरह कुछ थोड़े बहुत याद होंगे, विच इज फाइन, बट अगर आप उनको बस ऐसे ही मेंशन कर दोगे तो it will not fetch you marks. I will tell you why. Because somewhere in your body you will have to make interconnections as to how this policy of government is addressing a certain challenge in the food processing industry. तो different तरह के challenges हैं, और जो भी schemes हैं वो they are built in a way that they address those specific challenges,
है ना. तो यू हैव टू मेंशन इट इन दैट वे कि ये स्कीम है एंड इट इज एड्रेसिंग दिस चैलेंज इन दिस वे. उसके लिए आपको चैलेंजेस पता होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का. सो introduction could be same or similar to what we did in the first two questions, so I'll not discuss that. I'm sure you have understood how to go about that now. So to talk about the policy taken by the government of India, you will have to talk about the challenges of food processing industry. आप इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हो, है ना. एंड क्योंकि you know the challenges part is not the main focus of the question. Now understand this thing. और ये again आपका GS1 और GS2 और GS4 में भी relevant है, GS3 में तो है ही. हमेशा क्वेश्चन के मेजर पार्ट और माइनर पार्ट को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि आपसे एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मेन फोकस क्या है क्वेश्चन का, और माइनर फोकस क्या है क्वेश्चन पे. फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीज समझाने का कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पे चैलेंजेस लिखना तो है अपने आंसर में, ये आपको बताना पड़ेगा, बट ये इस क्वेश्चन का मेजर फोकस नहीं है. मेजर फोकस क्या है कि what are the policy that the government of India is taking. तो आपका मेजर वर्ड कंट्रीब्यूशन इस पार्ट को आंसर करने में जाना चाहिए, ना कि चैलेंजेस वाले पार्ट को. ओके, अगर आपसे ये पूछा होता कि यू नो मेंशन द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वो चैलेंज वाला पार्ट आपका मेजर पार्ट हो जाता. बट राइट नाउ दिस इज अ माइनर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो योर यूज ऑफ वर्ड्स should go more on this part rather than on this part. So, but आपको फिर भी challenges तो mention करना ही है. तो what you can do is कि minor part of the questions को ना आप ये भी इस तरह से भी address कर सकते हो कि आप एक spoke and wheel diagram से उनको बता दो, है ना. और you also can do this table thing also. This is also fine, but जो points में लिखने वाला चीज होता है ना, वो कोशिश करिए कि आप मेजर पार्ट में ज्यादा दीजिए. माइनर में भी दीजिएगा तो ऐसा देयर इज नो इशू, दे नॉट कट योर मार्क्स ऑन दैट. इट्स जस्ट कि यू नो यू कैन फ्लो यूजिंग फ्लो चार्ट्स एंड स्पोक एंड व्हील डायग्राम्स एंड यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ डायग्राम, थोड़ा यू नो इट पुट्स अ सर्टेन aesthetic value to your answer, so you can do that also. But please identify the major and minor part of the question. Don't get confused on that, otherwise आपके marks फिर कटेंगे. So please be very careful as to you are actually getting what is the major and minor part of the question. So once you have addressed the challenges of the food processing industry, we will go to the main part where we will talk about the steps taken by the government. And then again you have to talk, जो जैसे मैंने आपको पहले बोला, you will have to talk about the key features of that initiative and scheme and how it is impacting. What is the impact as in ये challenges को कैसे address कर रहा है, how it is actually helping to address those challenges. Now here various schemes have been mentioned. Of course 9-10 of them will not be feasible and खत्म भी आपका यही आंसर करते रह जाओगे आप. तो इसमें से कोई 4 से 5 स्कीम आप मेंशन कर दो, जो भी आपको याद रह जा रहा है. पीएम किसान ऑल्सो थोड़ा ये भी यू नो जस्ट गिव दिस डॉक्यूमेंट अ लुक एंड ऑल्सो काइंड ऑफ सी कि इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो रिसेंटली न्यूज में ज्यादा रही है और कौन सी ऐसी स्कीम है जो थोड़ी पीछे की है. इफ यू कुड यू नो जस्ट पुट दो स्कीम्स इन योर आंसर्स फर्स्ट who are in the news going on currently, that you know gives a good impression कि okay आपको मालूम है कि अभी न्यूज में क्या चल रहा है. So PM किसान संपदा, मेगा फूड पार्क स्कीम, कोल्ड एग्री चेन, PM KSY, then you know agricultural infrastructure fund, ease of doing business reforms. Mention any of these, है ना, recent से try picking up from the recent and then go backwards, and of course address the challenges that these are helping these schemes जो आपको challenges को address करने में help कर रही है, mention that, है ना. जैसे आपका PM किसान संपदा योजना है, तो इसका impact क्या हो रहा है कि projects approve हो रहे हैं, फाइनेंस डिसबर्स हो रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट स्ट्रेंथन हो रहा है. आपने ऊपर चैलेंजेस में ये चीज मेंशन किया है ना, कि डिलेज हो रहा है, यू नो फाइनेंस और फाइनेंस की दिक्कत आ रही है. सो दिस इज हाउ इट इज एड्रेसिंग इट. सो मेंशन दैट एवरी स्टेप इनिशिएटिव और स्कीम दैट यू मेंशन, you will have to talk about how it is addressing those challenges.
ओके, एंड देन अगेन द चैलेंजेस बोला है तो वे फॉरवर्ड तो आना ही है. सो इसमें अगेन टॉक अबाउट ओपन द डायमेंशंस. यू कैन यूज द पाइस फ्रेमवर्क, यू कैन यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर डायमेंशन खोलिए अपना. आप थोड़ा ऐसे भी सोच के डायमेंशन खोलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लीगल रेगुलेटरी फ्रेम रिफॉर्म में क्या कर सकते हैं, फाइनेंस एंड क्रेडिट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस, एक्सपोर्ट्स एंड ब्रांडिंग. थिंक स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि कहाँ वे फॉरवर्ड आ सकता है. वेयर आर द प्लेसेस, वेयर आर द फील्ड्स वेयर यू कैन मेक चेंजेस इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ओके, नाउ एंड देन यू कैन एंड इट विद अ कंक्लूजन. वोकल फॉर लोकल, मेक फॉर वर्ल्ड, विकसित भारत, कुछ भी मेंशन कर दीजिए आप, which should summarize your answer. Moving ahead to the next question, that is examining the role of supermarkets in the supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate the number of intermediaries? 2-part question. और इस 2-part question में भी जो first part है आपका, उसमें 3 पार्ट है ना. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन तीनों पार्ट को एड्रेस कर रहे हो. फ्रूट्स के भी बारे में बात कर रहे हो, वेजिटेबल्स के भी बारे में बात कर रहे हो, फूड आइटम्स के भी बारे में बात कर रहे हो, एंड देन यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि वो कैसे इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट कर दे रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ एग्जामिनिंग द रोल एग्जामिन करने के लिए आप ब्रीफली यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन by telling or defining or kind of explaining what supermarkets really are, है ना, and how it offers an alternative to traditional mandis by directly connecting producers and consumers. आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि सुपरमार्केट क्या होता है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप, है ना, कि बिग बाजार हो गया, है ना, या जो भी अभी रिसेंट में चल रहा होगा, रिलायंस की अपनी एक सुपरमार्केट है. यू कैन मेंशन दैट, गिव एग्जाम्पल्स, मेंशन दैट कि दीज आर द सुपरमार्केट्स. आप डायरेक्टली वहां जाते हो, सामान खरीद के ले आते हो. तो एंड देन यू कैन, जैसे आपने सुपरमार्केट एक्सप्लेन किया, आपको तुरंत समझेगा कि इंटरमीडियरीज का रोल यहाँ पे कैसे कट हो रहा है. बट बिफोर दैट यू विल हैव टू टॉक अबाउट देयर रोल इन the supply chain management of fruits, vegetables and food items. Now, for that, you will first have to talk about the role of supermarkets in supply chain management. Okay, so here first we will talk about the role of supermarkets in supply chain management. क्या क्या उसका function हो सकता है, roles क्या क्या हैं. डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है ना. इसमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करने से क्या फायदे हैं? फायदे ये हैं कि आप मंडीज को स्किप कर सकते हो, ट्रेडर्स को सपोर्ट कर सकते हो. जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस फ्रेश का आप एग्जांपल दे दो, है ना. सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग एट सोर्स हो जा रहा है, कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर्स मिलता है. क्यों? क्योंकि मिडिल मैन को कट कर देते हो आप, है ना. एंड देन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट है, फूड सेफ्टी एंड ट्रेसेबिलिटी है. सो दीज आर दी रोल्स of the supermarkets in the supply chain management. अच्छा, supply chain management का भी concept you should understand to answer this कि supply chain के कौन कौन parts, क्या क्या parts होते हैं, supply chain में stakeholders कौन कौन से होते हैं, उसको भी सोचते हुए हर word, हर एक keyword हर एक word जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका आपको एक बेसिक मतलब और उसके अंदर अगर कुछ वेरियस डायमेंशंस हैं तो वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें सुपरमार्केट के तो बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए कि सुपरमार्केट क्या होता है. इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसमें कौन कौन से चीजें हैं जो इसका पार्ट होती हैं. तभी आप एक्चुअली सोच भी पाओगे कि कैसे इसका रोल है सुपरमार्केट्स का इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. And then you can think about the second part of the question which talks about the intermediaries, है ना. तो ये words का meaning, इनके dimensions अंदर के आपके दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए when you brainstorm or when you write answers. So moving ahead, now roles हमने बात कर लिया. अब limitations होंगी कुछ supermarket की, जिसमें क्या limitations. now यहाँ पे आपसे पूछा है रोल, तो आप
बता सकते हो कि रोल तो ये है बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो. एंड व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ये है कि लिमिटेड फार्मर कवरेज है, एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, कोल्ड चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, देन अनफेयर प्राइस नेगोशिएशन, weak contract farming, narrow crop focus and so many other things. Sustainability concerns, क्या सस्टेनेबिलिटी कंसर्न है? प्लास्टिक पैकेजिंग और हाई एनर्जी कोल्ड स्टोरेज का है, ये राइज कर रहा है इनके प्रेजेंस से. तो मेंशन ऑल दीज लिमिटेशंस एंड दी एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दोज लिमिटेशंस कि कैसे वो लिमिटेशंस है, बाय सप्लीमेंटिंग अगेन विद अ डेटा और अ फैक्ट और कोई ऐसा इवेंट या एपिसोड जो आपको न्यूज़ में आपने पढ़ा हो और आपको फील हुआ हो कि ये एक चैलेंज है जो सुपरमार्केट इंडस्ट्री में, या ये एक लिमिटेशन है जो सुपरमार्केट इंडस्ट्री के तरफ से हमें देखने को मिलता है. ओके, व्हेन यू टॉक, सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जैसे आपको बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही आपको सुपरमार्केट मॉडल का क्या सप्लाई चेन है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल चेन, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए. Although you don't have to mention this in your answer, ये इस आंसर में मेंशन आपको नहीं करना है, बट क्योंकि सप्लाई चेन इज समथिंग जो आपसे क्वेश्चन में पूछा, आगे के कमिंग मेंस में पूछा जा सकता है, देयर कुड बी अ क्वेश्चन, सो काइंड ऑफ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल चेन एंड अ सुपरमार्केट मॉडल. इनमें क्या अंतर है कि इनके कौन स्टेक होल्डर्स इनमें कौन कौन से होते हैं और इनके स्टेक होल्डर्स क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, और ये हाउ इज दिस बेटर देन दिस. ये एक बेसिक नॉलेज में आपको अपने पता होना चाहिए. नाउ फ्रेमवर्क फॉर रोल. अगर आपसे सुपरमार्केट का आगे रोल पूछा जाए तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? आप इसको सुपरमार्केट है तो आप उसको इट्स इजी टू रिमेंबर कि आप उसको सुपरमार्ट वाले फ्रेमवर्क में याद कर लो उसके रोल्स बताने के लिए कि सोर्सिंग फ्रॉम फार्मर्स, अर्बन डिमांड फुलफिलमेंट, प्राइस ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स, reduction in intermediaries, market integration, assurance through contracts, regulatory standards and safety, technology in supply chain. आप इस फ्रेमवर्क के थ्रू इनका रोल्स को एड्रेस कर सकते हो. एंड देन आपका सप्लाई चेन से रिलेटेड अगर आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क आपसे पूछा गया है तो आप मेंशन द स्टेजेस एंड देन द सुपरमार्केट का रोल उसमें. तो आप स्टेजेस मेंशन कर लो. इनपुट लिंकेजेस होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, एग्रीगेशन एंड हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इनका आप बता दो कि सुपरमार्केट का इसमें रोल क्या है. तो अभी तो एक पार्ट है जो हम इस क्वेश्चन में आंसर कर रहे हैं. यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जैसे हमने रोल पूछ रहे हैं, आगे अगर मान लीजिए चैलेंजेस पूछ ले या स्कोप पूछ लें अबाउट सुपरमार्केट्स, तो हाउ डू यू गो अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, अगेन हैविंग अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस होल टॉपिक. तो रोल का तो हमने बता दिया कि सुपरमार्ट का रोल कैसे हेल्प कर रहे हैं वो. लिमिटेशंस की भी हमने बात कर ली, और ये तो खैर हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस किया है, तो ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया. होलिस्टिकली आपसे रोल अगर पूछे, नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले चीज को डायरेक्टली अगर मेंशन करके नहीं पूछ रहे हैं, तो आप सुपरमार्ट वाले फ्रेमवर्क से इसको आंसर कर सकते हो. एंड देन अगर आपसे सप्लाई चेन बेस्ड के बारे को बिल्कुल उसको पर्टिकुलरली उसको उसके रेफरेंस में अगर पूछे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि सुपरमार्केट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या रोल है इन चीजों में, तो आप इनको स्टेज वाइज आंसर करो, है ना, कि पहले इनपुट की बात करो, फिर प्रोडक्शन की बात करो, फिर प्रोक्योरमेंट की बात करो, फिर उसकी एग्रीगेशन एंड हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड डिस्प्यूट. ये स्टेप वाइज है ना. दिस इज अ स्टेप वाइज यू विल गो अबाउट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक वन एंड देन गोइंग अप द लैडर. अब अगर मान लीजिए फॉर सम किसी साल में आपसे इश्यूज पूछ लें, तो हाउ डू यू आंसर इट? यू आंसर इट इन द स्टेपल मेथड. आप उसके सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल, लीगल और इकोनॉमिक इश्यूज को बताओगे, और देन यू विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, है ना, कि लो फार्मर इंक्लूजन है, या
कोल्ड स्टोरेज की डेफिसिट है, या पुअर कोल्ड चेन लिंकेज है फार्म गेट पे, देन ओवरलैप इन फूड रेगुलेशन है, प्राइस एसिमेट्री है, एनी ऑफ दिस, कोई भी 1 से 2 पॉइंट इसमें आप मेंशन करिए इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट द इश्यूज. ओके, एंड सो this is how you go about answering the question on supermarket in supply chain management. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमने रोल के बारे में बात कर लिया, हमने चैलेंजेस लिमिटेशंस के बारे में बात कर ली, हमने सप्लाई चेन से लेके उसका कनेक्शन क्या है उसके बारे में भी बात कर ली, एंड हाउ डू दे, फिर वी विल एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ डू दे एलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, जो आपको इस रोल और स्कोप में ही आपको दिख जाएगा इसका आंसर. तो उसको आप अपने आंसर में आप उसको एक अपना अलग पार्ट बनाओ, एंड देन यू मेंशन हाउ दे एलिमिनेट द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज वहां पे. ठीक है, नाउ ये था आपका फूड चेन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल कम टू द लैंड रिफॉर्म्स वाला टॉपिक. सो आई गेस आपको रफली एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से, कितना आपको डायमेंशंस खोलना आना चाहिए आपके आंसर का, कौन कौन से हेडिंग्स हैं जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, आपका स्कोप, आपका लिमिटेशंस और चैलेंजेस, आपका फ्यूचर वे फॉरवर्ड या फ्यूचर स्टेप्स. अच्छा, यू कैन ऑल्सो मेंशन द बेस्ट प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टेट लेवल कोई अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दोज थिंग्स. Now moving on to our second topic for today, that is land reforms. We will see the PYQs based on land reforms and how do we answer the question based on land reforms. So going for सबसे पहले we will do the 2024 one जो अभी just last mains में आया है. What were the factors responsible for successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. सो अगेन आपको पहले समझना होगा कि इस क्वेश्चन के पार्ट्स क्या क्या हैं. तो आपको बताना है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या थे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इलैबोरेट. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की हिस्ट्री थोड़ा ब्रीफ में मालूम होनी चाहिए. आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो उससे भी आपको थोड़ा कनेक्ट करना आना चाहिए. एंड लैंड रिफॉर्म्स इज अगेन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सिलेबस. सो अगेन यू नीड टू हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस टॉपिक. चैलेंजेस से शुरू करते, चैलेंजेस, स्कोप, क्या हिस्ट्री था, पहले क्या था, अब क्या है, किन स्टेट्स में मेजरली लैंड रिफॉर्म्स हुआ है, कौन स्टेट इसमें पीछे रह गई हैं, क्यों ऐसा है कि ये स्टेट पीछे रह गई हैं एंड ये स्टेट आगे हैं. All of these things. You should again have a holistic understanding and knowledge of the land reforms in our country. So you can mention that how land reforms in India were introduced post-independence to ensure agrarian equity, dismantle feudal structures, improve agricultural productivity. However, so ये आप पहले mention करो, but क्योंकि इनमें some parts of the country पूछ दिया है, इसका मतलब किसी कोई part में अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है. तो मेंशन दैट इन योर इंट्रोडक्शन. एक हल्का सा हिंट दो कि फिर भी द सक्सेस हैज बीन अनइवन. व्हाई? बिकॉज सम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव अचीव्ड नोटेबल रिजल्ट्स बट अदर्स हैव लैग्ड बिहाइंड. दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन. इस तरह से आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करोगे. नाउ व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्या थे फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. अब आप एक बार सोच के देखो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कोई भी स्कीम को या कोई भी मूवमेंट को या कोई भी पॉलिसी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किन किन चीज़ों के वजह से पॉसिबल होता है. पॉलिटिकल विल होता है, एक रोबस्ट लेजिस्लेशन होती है उसके पीछे, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी कितनी रही उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कितना एक्यूरेट रिकॉर्ड्स था इस केस में, कितने एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स थे आपके पास, जुडिशियल सपोर्ट था, नॉन इंटरफेरेंस था कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, मास मोबिलाइजेशन, लोगों को कितना मालूम था उसके बारे में. इस केस में लैंड रेवेन्यू चेंजेस जो हो रही है या लैंड रिफॉर्म्स जो आ रही हैं उसके बारे में मास मोबिलाइजेशन या अवेयरनेस जनरल
पब्लिक में कितना है, लोकल गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, टेनेंसी रिफॉर्म्स अगर हुए हैं तो स्ट्रांग हुए हैं कि वीक हुए हैं, और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दीजिए। यू कैन ऑल्सो पिकअप योर सम ऑफ योर पॉइंट्स फ्रॉम योर पॉलिटी ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे भी आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की है। यू कैन मेंशन द केसेस, यू कैन मेंशन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बिहाइंड दोज थिंग्स, यू कैन ऑलवेज मेंशन द स्टेट्स जहाँ पे ये अच्छे से अप्लाई हुआ है, यू कैन मेंशन द इंसिडेंट्स सराउंडिंग दीज थिंग्स, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल में आप देखिए वेस्ट बंगाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला ने important role play किया है, they took up on themselves to actually make a change. Then judicial support में where you say that Kerala courts mostly upheld land reform laws, especially post first amendment 1951 and 9th schedule protections की वहाँ की लोकल कोर्ट्स ने भी सपोर्ट किया कि हाँ आपने जो रिफॉर्म जो लेजिस्लेचर ने जो पास किया है वहाँ पे इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, देयर हैव बीन नो जुडिशियल हर्डल्स, so mention that as an example. Now as a counter you can add why it failed in other states. यहाँ पे आपसे सक्सेस पूछा है, हो सकता है अगली बार इफ नॉट दिस ईयर मे बी इन कमिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इट माइट आस्क यू कि बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं वर्क किया है, लाइक व्हाई इट हैज बीन अनसक्सेसफुल और व्हाई देयर हैज बीन इरेगुलर एप्लीकेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने ऊपर अभी दिया ना, इसका ठीक उल्टा आपको लिखना होगा, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होने का कारण ये है देन ऑफकोर्स जिन स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं हुआ है वहां पे ये सारी चीजें मिसिंग होगी, या इनमें से मेजॉरिटी चीजें मिसिंग होगी। हो सकता है कि कुछ 2-3 चीजें हो भी वहां पे, बट बाकी 2-3 पॉइंट्स ऐसे होंगे which would not have been there, so kind of curtailing the success of the other points also. So it would be opposite to what you mentioned here. And then if a question like that comes, and then you will talk about the recent steps. Now kyunki they have asked you about to elaborate on this, you should mention the recent steps that the government has taken. So you will, of course, the Swamitwa scheme and the Digital India Land Records Modernization Program, these two are very important because they are constantly in the news. So recent steps mein you should mention these 2 points and give a little 1 to 2 line description of these 2 schemes. Apart from that, you can also talk about the E-Gram Swaraj portal and Model Tenancy Act, if you remember. Otherwise, these 2 will also do good. Model Tenancy Act bhi, if you can mention, it's fine. Acha hai wo, it is a good initiative. And then conclusion. How it remains central to rural justice and development, how completing the unfinished agenda is still important, how through digitization, and decentralized implementation, this can align with broader goals of inclusive growth and sustainable rural transformation. ये आप mention करिए अपने conclusion में, giving a summary of the above points. Okay. Moving ahead. Question number 20, again next question, 2023, just 2 साल पहले का question है, where they are asking you state the objectives and measures of land reforms in India. First objectives and then measures. This should be firstly, ये पहले address करना है, ये second address करना है. Discuss how land ceiling policy, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये है क्या. Without this आपको ये question answer करने में दिक्कत होगा. So discuss how land ceiling policy on land holding can be considered as an effective reform under economic criteria. Now आप ये देखिए economic criteria यहाँ पे mention कर दिया है. इनको ये इन्होंने specific बना दिया है सेकेंड पार्ट को. तो मेक श्योर कि आप जब अपना सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो वहां पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आपका फोकस होना चाहिए. इट शुड बी द फोकस. नीचे के लास्ट के 1-2 पॉइंट आप फिर भी थोड़ा बहुत डाइग्रेस करना अफोर्ड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के मेन 3-4 पॉइंट्स आपका एकदम इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे फोकस करना चाहिए. यू डोंट हैव टू डाइग्रेस फ्रॉम दिस. So, give a brief introduction on land reforms, similar to what we discussed in the last question. Then quickly talk about the objectives of land reforms in India. Why did it start in the first place?
as to eliminate exploitation, to ensure equitable land distribution, empower rural poor, provide security of tenure, things like that. And then quickly we will move to the measures of land reforms in India. Okay, what were the measures that was taken, है ना? Just जैसे हमने we talked about पहले भी कि intermediaries को abolish किया, tenancy reforms किया, land ceiling acts आए, consolidation of holdings, and the actions that were taken under these measures: updating and digitizing land records, redistribution of surplus land, prevention of land alienation in tribal areas, legalization of tenancy in some state, talk about the PESA Act and Forest Rights Act, talk about the Swamitwa scheme, talk about the DIL RMP scheme, है ना? You can all measures में आप इनको mention करिए, actions taken बताइए, any 5 or 6 of them would suffice. Now, coming to the second part of the question, where we talk about the land ceiling policy as an effective economic reform. How is it an effective economic reform? So, your question should be on the economic criteria. पहले कि कैसे land access बढ़ रहा है for the landless, and how is the land ceiling policy contributing to it? Redistribution of surplus land reduces rural inequality and increases the number of productive farmers. Now see, if spoon feeding करने से दिक्कत ये होता है कि you will not be able to think अपने से, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए, brainstorm कि लैंड रिफॉर्म्स के केस में इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है. थोड़ा स्टेक होल्डर्स सोचिए कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनको ये इकोनॉमिकली बेनिफिट कर सकता है ना? या प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, या लैंड होल्डिंग से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या इस तरह से थोड़ा इकोनॉमिक थोड़ा को ध्यान रखते हुए आंसर दिस क्वेश्चन. सो enhances marginal productivity of land, promotes equity driven growth, reduces capital wastage, increase labor absorption and stimulates rural demand. Now you can see, एक चीज आप देख सकते होगे कि यहाँ पे हमने डाइग्रेस नहीं किया है. We are talking about जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे mentioned हैं, it is talking about the effective economic reform. मान लीजिए आपसे यहाँ पे social reforms अगर पूछ दिया है, तो you will have to talk about only the social reforms, है ना? आप उस social reforms को किसी economic reforms के थ्रू justify कर सकते हो, that is fine, but please ध्यान दीजिए कि आपसे स्पेसिफिकली किसी फील्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा है, या दे हैव आस्क्ड यू अ होलिस्टिक क्वेश्चन वेयर यू कैन मेंशन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आल्सो, वेयर यू कैन मेंशन द सोशल रिफॉर्म्स आल्सो, वेयर यू कैन मेंशन द टॉप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आल्सो. They could have easily asked you a question where they would have asked you that how land ceiling policy has caused a reform in the country. There you can open multiple dimensions, but यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछा है तो आपको डायमेंशंस भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर ही खोलना होगा. प्लीज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. हड़बड़ी में मिस हो जाता है. डोंट डू दीज थिंग्स. यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स इफ यू मेंशन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, आपसे पूछा नहीं है तो जबरदस्ती उनको मत बताइए. अपने लिए चीजों को मुश्किल और मत बनाइए. इकोनॉमी के बारे में पूछा है, इकोनॉमी के बारे में आंसर करिए. Okay, and then you can conclude by talking about Kerala and West Bengal, which have implemented land ceiling most effectively to better land distribution, rural stability and higher productivity and than most other states. Now and then talk about how, अगर आपको आप ये भी conclusion कर सकते हो, ऐसे भी conclusion डाल सकते हो कि कैसे ये central to rural justice and development है, और भी चीज़ें हैं. You can always इस तरह के कंक्लूजन में आप अपना कंक्लूजन एक वे फॉरवर्ड के वे में भी दे सकते हो. डोंट मेंशन वे फॉरवर्ड एज सच, बट अगर आपको लगता है कि कुछ इस चीज का वे फॉरवर्ड हो सकता है, बिकॉज अभी आपने यहाँ चैलेंजेस मेंशन नहीं किया है, बट मान लीजिए यू कैन थिंक योर कंक्लूजन इन अ वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ वे ऑल्सो. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इस चीज का कंक्लूजन लिखें, अपने कंक्लूजन में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड टाइप का भी आप कंक्लूजन पुट अप कर सकते हो. Okay, so the next question will be an assignment for you. This is something which I will not tell you how to go about it, but note this question. This is a 2021 question
where it is asking how did land reforms in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers. This is an assignment for you. Go back, attempt this question and think इसके डायमेंशंस के बारे में. अभी हमने जो ऊपर 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया है लैंड रिफॉर्म्स को लेके, उसको दिमाग में रखते हुए, उस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड द मेजर एंड द माइनर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक पार्ट क्या है, आपको इस क्वेश्चन को किस सेंस में होलिस्टिकली आंसर करना है और किस सेंस में ये एकदम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है. आई विल गिव यू अ हिंट, वेयर हिंट क्या है, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. इस पे आपका फोकस होना चाहिए. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल discuss how you attempted this question, how you should have attempted this question, and we will match through it. And then next lecture mein, apart from this, we will be covering PYQs of some other GS3 topics, which will help you to understand as to how better you can perform in questions which will be asked in your mains. For now, today we'll end the session here. Please go through this document once again, go through the frameworks, understand the challenges, understand how you answer the specific parts of your question, and remember that whatever has been mentioned in your syllabus, you should have a 360-degree view of that topic, data, and especially with sunrise sectors, past, present, and future. You should have a knowledge of that. Okay, so we'll end the session here. Thank you, everyone.